وہ آتے آتے رہ گیا، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق، اس کے بعد ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ آتے آتے رہ گیا، یعنی وہ آنے ہی والا تھا، اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا۔ وہ آتے آتے رہ گیا۔ He almost came. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا، سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا۔ میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا۔ I almost bought mobile. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی، یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی۔ She almost told me. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اب ٹینس چینج ہو چکا ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ She almost gets ready. یہاں get کے ساتھ s ایڈ ہے اس لیے کہ she یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، اس کا رول ہے۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بارش ہوتے ہوتے رہ گیا، بارش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ بس وہاں جانے کی تو بات ہے، بس ملنے کی تو بات ہے، بس پیسوں کی تو بات ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ It's only a matter of plus verb plus ing یا noun plus other words۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بس وہاں جانے کی تو بات ہے، یعنی صرف وہاں جانے کی تو بات ہے۔ It's only a matter of going there. It's only a matter of going there. Going یہ verb plus ing ہے جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ بس ملنے کی تو بات ہے۔ It's only a matter of meeting. It's only a matter of meeting. Meeting یہ بھی verb plus ing ہے جس کو جرنڈ کہا جاتا ہے۔ بس پیسوں کی تو بات ہے، بس پیسوں کی تو بات ہے، یعنی صرف پیسوں کی بات ہے۔ It's only a matter of money. It's only a matter of money. Money یہ ناؤن ہے۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. بس کچھ دیر رکنے کی تو بات ہے، بس کچھ دیر رکنے کی تو بات ہے۔ It's only a matter of staying there for a while. It's only a matter of staying there for a while۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بس انگلش سیکھنے کی تو بات ہے، بس انگلش سیکھنے کی تو بات ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ یہ مناسب وقت ہے اسے بتانے کا، یہ مناسب وقت ہے جانے کا، یہ مناسب وقت ہے پڑھنے کا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مناسب وقت یعنی صحیح وقت، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہائی ٹائم۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ It is plus high time plus to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب plus other words۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ مناسب وقت ہے اسے بتانے کا، یعنی
यानी ये सही वक्त है उसे बताने का. It is high time to tell him. It is high time to tell him. ये मुनासिब वक्त है जाने का. It is high time to go. It is high time to go. ये मुनासिब वक्त है पढ़ने का, यानी ये सही वक्त है पढ़ने का. It is high time to study. It is high time to study. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. One more example for better understanding. ये मुनासिब वक्त है सोने का, यानी ये सही वक्त है सोने का. It is high time to sleep. It is high time to sleep. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. ये मुनासिब वक्त है उससे मिलने का. ये मुनासिब वक्त है उससे मिलने का. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. उसने जो भी कहा वो सही था. मैंने जो भी सोचा वो सही था. तुमने जो भी किया वो सही था. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. Whatever प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस was right. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. उसने जो भी कहा वो सही था. Whatever he said was right. Whatever he said was right. मैंने जो भी सोचा वो सही था. Whatever I thought was right. Whatever I thought was right. तुमने जो भी किया वो सही था. Whatever you did was right. समझो चला गया. समझो हो गया. समझो बोल दिया. समझो बता दिया. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर. कंसीडर मीन समझो. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. कंसीडर प्लस 8 प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. समझो चला गया. कंसिडरेट गॉन. कंसिडरेट गॉन. समझो हो गया. कंसिडरेट डन. कंसिडरेट डन. समझो बोल दिया. कंसिडरेट स्पोकन. कंसिडरेट स्पोकन. समझो बता दिया. कंसिडरेट टोल्ड. कंसिडरेट टोल्ड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. समझो सीख गया. समझो सीख गया. सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. पूछो किया पूछना है. बोलो किया बोलना है. ले लो किया लेना है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, जैसा कि प्ले, गो, इट एटसेट्रा. ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. इसके बाद व्हाट यू वांट टू. व्हाट यू वांट टू. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. पूछो क्या पूछना है यानी पूछो जो पूछना है. आस्क व्हाट यू वांट टू. आस्क व्हाट यू वांट टू. आस्क ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पूछना. व्हाट यू वांट टू मीन क्या पूछना है. वांट टू का रिडक्शन फॉर्म है वना. गोरे वांट टू यूज नहीं करते, इसकी जगह वो वना यूज करते हैं. आस्क व्हाट यू वना. आस्क व्हाट यू वना. पूछो क्या पूछना है. आस्क व्हाट यू वांट टू या आस्क व्हाट यू वना. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बोलो क्या बोलना है यानी बोलो जो बोलना है. स्पीक व्हाट यू वांट टू. स्पीक व्हाट यू वना. स्पीक व्हाट यू वना. स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. व्हाट यू वांट टू या व्हाट यू वना मीन क्या बोलना है. यहाँ स्पीक व्हाट यू वांट टू, स्पीक व्हाट यू वना. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ले लो क्या लेना है यानी ले लो जो लेना है. टेक व्हाट यू वांट टू. टेक व्हाट यू वना. टेक
what you want to की जगह हम यूज़ कर सकते हैं take what you wanna। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। that can be really helpful for you, it can take you from basic to advanced level। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। one more example for better understanding, keep this point in your mind। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। खरीदो, क्या खरीदना है, यानी खरीदो जो खरीदना है। buy what you want to, buy what you want to, या we can say that buy what you wanna, buy what you wanna। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बताओ क्या बताना है, बताओ क्या बताना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है, यानी हकीकत में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक, इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, इट इज़ योर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंटेंस है, विच मीन ये तुम्हारी गलती है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर, इन रियलिटी he wanted to come here। in reality मीन असल में या हकीकत में, he wanted to come here ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which मीन वो यहाँ आना चाहता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी हकीकत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। in reality I want to study, in reality I want to study। in reality मीन असल में, I want to study मीन मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं, असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग, इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो जाना चाहता है, असल में वो जाना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसी दौरान वो चला गया, इसी दौरान मैं सो गया, इसी दौरान हम आ गए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी दौरान, यानी इसी वक्त या इसी असना में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द मीन वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन द मीन वाइल, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन द मीन वाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन इसी दौरान या इसी असना में या इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी दौरान वो चला गया, यानी कोई काम जारी था, कोई काम शुरू था कि वो चला गया। ही लेफ्ट इन द मीन वाइल, ही लेफ्ट इन द मीन वाइल, ही लेफ्ट ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो चला गया। इन द मीन वाइल मीन इसी असना में या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी दौरान मैं सो गया, यानी कोई काम हो रहा था, कोई काम जारी था, शुरू था कि मैं सो गया। आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल, आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल, आई स्लेप्ट मीन मैं सो गया, इन द मीन वाइल मीन इसी दौरान या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी दौरान हम आ गए, यानी कोई काम हो रहा था कि हम आ गए। सिंपली वी कैन से दैट वी केम इन द मीन वाइल,
we came in the meanwhile, we came mean हम आ गए, and the meanwhile mean इसी असना में। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। one more example for better understanding। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी दौरान वो रो रही थी, इसी दौरान वो रो रही थी, यानी कोई काम हो रहा था और वो भी कोई काम जारी था, शुरू था, कोई काम हो रहा था और वो भी रो रही थी। she was crying in the meanwhile, she was crying in the meanwhile, she was crying mean वो रो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। in the meanwhile mean इसी असना में। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी दौरान वो खाना पका रही थी, इसी दौरान वो खाना पका रही थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं या ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नथिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज़ नथिंग प्लस कामा अगर लिखना हो तो प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट स्पीक, देयर इज नथिंग आई कांट स्पीक। देयर इज ये देयर इज का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट डू, देयर इज नथिंग आई कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट बाई, देयर इज नथिंग आई कांट बाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट लर्न, देयर इज नथिंग आई कांट लर्न। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पका नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पका नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। बताओ तुम कौन हो, बताओ वो किसी हैं, बताओ तुम कहाँ थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है, टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे, टेल मी वेयर यू वर। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, यू हैव बिकम माई नीड, यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है, मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। तुम
کچھ زیادہ ہی پڑھ رہے ہو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ زیادہ ہی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو مچ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس ٹو مچ پلس ادر ورڈس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ٹو مچ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کچھ زیادہ ہی. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو. یو آر اسپیکنگ ٹو مچ. یو آر اسپیکنگ ٹو مچ. یو آر اسپیکنگ یہ سینٹینس ہے اور ٹو مچ یہ فریز ہے. وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے. ہی از تھنکنگ ٹو مچ. ہی از تھنکنگ ٹو مچ. ہی از تھنکنگ یہ سینٹینس ہے. ٹو مچ یہ فریز ہے. تم کچھ زیادہ ہی پڑھ رہے ہو. یو آر ریڈنگ ٹو مچ. تم وہاں کیسے جا سکتے ہو. تم مجھ سے دوستی کیسے توڑ سکتے ہو. تم اسے فون کیسے گفٹ کر سکتے ہو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ہاؤ کین یو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم وہاں کیسے جا سکتے ہو. ہاؤ کین یو گو دیئر. ہاؤ کین یو گو دیئر. گو یہ وی ون ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. تم مجھ سے دوستی کیسے توڑ سکتے ہو. ہاؤ کین یو بریک فرینڈ شپ ود می. ہاؤ کین یو بریک فرینڈ شپ ود می. تم اسے فون کیسے گفٹ کر سکتے ہو. تم اسے فون کیسے گفٹ کر سکتے ہو. ہاؤ کین یو گفٹ ہیم اے فون. ہاؤ کین یو گفٹ ہیم اے فون. پوچھو کیا پوچھنا ہے. لے لو کیا لینا ہے. بولو کیا بولنا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس واٹ یو وانٹ ٹو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پوچھو کیا پوچھنا ہے. پوچھو کیا پوچھنا ہے. آسک واٹ یو وانٹ ٹو. آسک واٹ یو وانٹ ٹو. لے لو کیا لینا ہے. ٹیک واٹ یو وانٹ ٹو. ٹیک واٹ یو وانٹ ٹو. بولو کیا بولنا ہے. اسپیک واٹ یو وانٹ ٹو. میرا کوئی قصور نہیں ہے. قصور تمہارا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آکسیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. اگر سینٹینس نیگیٹو ہو تو ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ یوز ہوگا پلس ایٹ فولڈ پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرا کوئی قصور نہیں ہے. آئی ایم نوٹ ایٹ فولٹ. آئی ایم نوٹ ایٹ فولٹ. قصور تمہارا ہے اس میں. یو آر ایٹ فولٹ ان دس. یو آر ایٹ فولٹ ان دس. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ہی از نوٹ ایٹ فولٹ ان دس. یہ وہی کار ہے جو اس نے 2 سال پہلے خریدا تھا. یہ وہی موبائل ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں. یہ وہی آفس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے دس از دا ویئر پلس ناؤن پلس ویئر یا ویچ یا ہوں پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ وہی کار ہے جو اس نے 2 سال پہلے خریدا تھا. دس از دا ویری کار وچ ہی بوٹ 2 years ago. دس از دا ویری کار وچ ہی بوٹ 2 years ago. یہ وہی موبائل ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں. دس از دا ویری موبائل وچ آئی وانٹ ٹو بائی. دس از دا ویری موبائل وچ آئی وانٹ ٹو بائی. یہ وہی آفس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں. دس از دا ویری آفس ویئر آئی ورک. وہ اس کام کو کل تک ختم کر چکا ہوگا. تمہارے آنے سے پہلے ماں کھانا بنا چکی ہوگی. پولیس آنے سے پہلے چور بھاگ چکا ہوگا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ویل پلس ہیو پلس وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ اس کام کو کل تک ختم کر چکا ہوگا. ہی ول ہیو فنشڈ دس ورک بائی ٹمارو. He will have finished this work by tomorrow. تمہارے آنے سے پہلے ماں کھانا بنا چکی ہوگی. Madam will have cooked food before you come. Madam will have cooked food before you come. پولیس
आने से पहले चोर भाग चुका होगा। The thief will have fled before police arrive. कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा, कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा, कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर। आज में वो ये काम करेगा। आज में हम पहुंच जाएंगे। आज में ये नहीं हो सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेदन टुडे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वेदन टुडे। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वेदन टुडे ये वही का वही रहेगा, विच मीन आज में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज में वो ये काम करेगा। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। He will do this work वेदन टुडे। आज में हम पहुंच जाएंगे। We will reach वेदन टुडे। We will reach वेदन टुडे। आज में ये नहीं हो सकता। It can do वेदन टुडे। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है, उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है, आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद की जाती है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना।